Morning, my dear students. We have already discussed various aspects of money and banking. Today, we are going to discuss the next aspects of the banking system. I have already discussed about the Reserve Bank of India and its function in the previous class. Today, we are going to discuss very important aspect. It is rather a policy which is framed by Reserve Bank of India, which is called as monetary policy. All of you might have heard about it. Now you might have question about what is monetary policy. Then let me tell you one thing. Therefore, monetary policy is an economic policy that manages the size and growth rate of the money supply in an economy. It is a powerful tool to regulate macroeconomic variables such as inflation and unemployment. One thing is clear that monetary policy is what? It is an economic policy. करता क्या है monetary policy? It manages the size and growth rate of the money supply in an economy. What should be the level of supply of money in an economy? It is decided through this monetary policy. ये एक powerful tool है in the hands of central bank to control the macroeconomic problems of the economy, which includes inflation and unemployment. It is a policy adopted by the monetary authority of a country that control either the interest rate payable on very short-term borrowings or the money supply, often targeting inflation or interest rate to ensure the price stability and general trust in the currency. Therefore, it is clear that it is a policy which is adopted by the monetary authority of a country. Who is monetary authority? It is central bank, or we may say Reserve Bank. And it decide what should be the rate of interest which will be payable on short-term borrowings or the monetary supply. Often अगर हम बात करें then इसका टारगेट क्या होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एंड प्राइस स्टेबिलिटी ब्रिंग करना. Therefore, monetary policy includes certain tools which includes. Now, what are those tools? This is the next question. The tools include changing rate of interest, purchasing securities from the open market, and other tools. So, these policies are implemented through different tools, including the adjustment of interest rate, purchase or sale of government securities, and changing the amount of cash circulating in the economy. The central bank or a similar regulatory organization is responsible for formulating these policies. Monetary policy versus fiscal policy. Next topic. बेटा आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न होगी कि मॉनेटरी पॉलिसी एंड जो फिजिकल पॉलिसी है ये सारा कुछ वन एंड द सेम थिंग. बट let me make you clear one thing, that monetary policy is a policy which is framed by Reserve Bank on behalf of government, but fiscal policy is framed by government itself. Ministry of Financial Affairs framed this policy in consultation with Reserve Bank authorities. Unlike fiscal policy, which relies on the government to spend its way out of recession, monetary policy aims to manipulate the money supply. Fiscal policy में क्या होता है कि मनी की सप्लाई कितनी होगी, ठीक है, उसको मैनिपुलेट कैसे करना है, दैट इज डिसाइडेड इन मॉनेटरी पॉलिसी, लाइक प्रिंटिंग मोर मनी और डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट और रिमूविंग द एक्सेस रिजर्व. इंटरेस्ट रेट में चेंज करना है, एक्सेस रिजर्व के बैलेंसेस में कुछ चेंज करना है, ये सारा कुछ मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड होता है. फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट सिर्फ ये डिसाइड करती है कि हमारे कितने रिसीट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे एक्सपेंडिचर कितने हैं, किस तरह से रिसीट को इंक्रीज करना है टू मीट द एक्सपेंडिचर लेवल, राइट. So, the further goals of monetary policy are usually to contribute to the stability of gross domestic product. Monetary policy का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एक स्टेबिलिटी लेके आना है. अगर हमारी इकोनॉमी में कुछ वेरिएशन चल रही होती है देन उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के वेरियस टूल्स को यूज़ किया जाता है. एंड टू अचीव एंड मेंटेन द लो अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल लो है, एंड टू मेंटेन अनप्रडिक्टेबल एक्सचेंज रेट विद अदर करेंसी, अगर करेंसी रेट में अनप्रडिक्टेबल चेंजेस आ रहे हैं उसको भी कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम की जाती है. Next, it is clear that there are certain clear objectives of monetary policy. These objectives certainly includes
the management of inflation or unemployment and maintenance of currency exchange rate. We will discuss one by one all the objectives. First is inflation. Inflation is what? Inflation is when there is a sudden increase in the wholesale price index of an economy. Monetary policies can target inflation levels. A low level of inflation is considered to be healthy for the economy. देखो बेटा, अगर 2-3% की इन्फ्लेशन है, दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट शुड बी देयर फॉर ग्रोथ, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन नहीं होगी देन देर विल बी स्टेगनेशन इन द इकोनॉमी. सो अप टू अ सर्टेन लेवल इन्फ्लेशन इज एक्सेप्टेबल. बट अगर इन्फ्लेशन का लेवल जो है इट इज़ आउट ऑफ द रेंज, देन मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स हैं, उनको हम यूज़ करेंगे उनको कंट्रोल करने के लिए. If inflation is high, a contradictory policy can address this issue also. Next is unemployment. Unemployment is a problem which is prevalent in every kind of underdeveloped nation. Even developing countries are also facing the problem of unemployment. Monetary policy can influence the level of unemployment in the economy. For example, an expansionary monetary policy generally decreases unemployment because the higher money supply stimulate business activity. You might have a idea that when there is unemployment is why? When there are less employment opportunity, means business level is very less. लोग बिजनेस कम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही हैं, तो पीपल अनएम्प्लॉयड हैं. तो अब उसको डील कैसे करना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस वेंचर्स में इन्वेस्ट करें. तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगा कुछ पर्टिकुलर बिजनेस क्लास के ऊपर. इंटरेस्ट रेट कम होंगे देन पीपल विल बी रेडी टू टेक इनिशिएटिव टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. अगर नया बिजनेस शुरू होएगा देन ऑब्वियसली देयर विल बी क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल विल बी डिमोलिश्ड. नेक्स्ट इज करेंसी एक्सचेंज रेट. करेंसी एक्सचेंज रेट प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ किया जाता है. करेंसी एक्सचेंज रेट क्या होती है? व्हेन वी आर एक्सचेंजिंग द लेवल एक्सचेंजिंग आवर करेंसी इन एज कंपेरिजन टू द करेंसी ऑफ अदर कंट्री. So, using its fiscal policy, a central bank can regulate the exchange rate between domestic and foreign currency. For example, the central bank may increase the money supply by issuing more currency. In such a case, the domestic currency becomes cheaper. Next, there are the tools of monetary policy. Before discussing the tools of monetary policy, I would like to discuss with you the types of monetary policy. Monetary policy is of two types, expansionary and contractionary. Depending on its objective, monetary policy can be expansionary or contractionary. Now, what is expansionary? Expansionary monetary policy वो पॉलिसी है जब ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट किया जाता है मार्केट में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन्स प्रोवाइड करे जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस करें. दैट पॉलिसी इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. दिस इज अ मॉनेटरी पॉलिसी दैट एम्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक एंड लॉरिंग द रिजर्व requirements for bank. An expansionary policy lowers the unemployment and stimulates the business activities and consumer spending. The overall goal of the expansionary monetary policy is to fuel economic growth. However, it can also possibly lead to higher inflation. अगर इन एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज़ करेंगे देन अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल भी कंट्रोल होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, ऑब्वियसली कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेंगी ज़्यादा से ज़्यादा और बिजनेस एक्सपैंड होगा और मनी की सप्लाई जो है बढ़ाई जा सकती है. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. अगर गवर्नमेंट को ऑलरेडी लग रहा है कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी की सप्लाई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी सप्लाई होगी. कॉन्ट्रैक्शनरी क्या होगा? मतलब गवर्नमेंट रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगा. इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो जो बंदे के पास, अगर किसी के पास जेन्युइन बिजनेस वेंचर्स हैं, ओनली दोज पीपल विल स्टार्ट द बिजनेस, अदरवाइज दे विल रेजिस्ट टू एंटर इन अ बिजनेस एम्पायर. So, the goal of contractionary monetary policy is to decrease the money supply in the country. It can be achieved by raising interest rate
selling government bonds and increasing the reserve requirement for banks. So the contractionary policy is utilized when the government wants to control the inflation level. Next, we will discuss all these tools in detail. These may be also called as the instrument of monetary policy. There are two types of credit control instruments: quantitative credit control instrument and qualitative credit control instrument. Quantitative and qualitative difference is quantitative is based on increasing the overall supply of money. Qualitative is related with the direction in which credit will be created. राइट क्वांटिटेटिव में डायरेक्शन नहीं कभी डिसाइड की जाएगी कि किसके पास पैसा जा रहा है, सिर्फ क्वांटिटी को डिसाइड किया जाता है कि कितनी मनी मार्केट में जाएगी. अब वो जाएगी किस डायरेक्शन में, किस बंदे को किस सेक्टर के लिए कितना क्रेडिट क्रिएट होना चाहिए, इट इज़ डिसाइडेड इन द क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स. फर्स्ट, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट. इट इंक्लूड्स interest rate adjustments. This point is already clear to you. If our Reserve Bank wants to increase the supply of money, then what they will do? Yes, any idea? They will decrease the interest rate. If they want to decrease the supply of money, then what will be the tool? They will increase the interest rates. So interest rate, or we may say discount rate, is the base rate. It is an interest rate charged by a central bank to banks for short-term loans. For example, if a central bank increases the discount rate, the cost of borrowing for the banks increases. Subsequently, the banks will increase the interest rate they charge from their customer. Thus, the cost of borrowing in the economy will increase and the money supply will be decreased. Second important tool of monetary policy is changing the reserve requirement. हर एक कमर्शियल बैंक के लिए ये ज़रूरी है कि वो कुछ मैंडेटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करेगा. देयर आर सर्टेन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एवरी कमर्शियल बैंक टू फॉलो. दोज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स आर रिजर्व रिक्वायरमेंट. Every central bank usually set up the minimum amount of reserve that must be held by commercial bank. By changing the required amount, the central bank can influence the money supply in the economy. वो रिजर्व रिक्वायरमेंट की जो रेट है उसको चेंज करके मॉनेटरी सप्लाई को चेंज करा जा सकता है. If monetary authority increases the required reserve amount, commercial banks will have less money available to lend to their clients, and thus money supply decreases. Banks are obliged to maintain reserve with the central bank at some fixed proportions. वो कौन कौन से रिजर्व्स हैं? कैश रिजर्व्स एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो जिसको शॉर्ट में CRR भी बोलते हैं. अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ो ना, मतलब जो लेटेस्ट नॉर्म्स आते हैं हर एक मॉनेटरी पॉलिसी में, उसमें CRR रेशियो एंड SLR रेशियो को बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन करा होता है कि अब ये रेट्स क्या हैं. CRR क्या है? It is a fixed proportion of reserves with the RBI. Every bank have to deposit amount equal to cash reserve ratio with the reserve bank. क्या होता है कि जितने हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हैं एज अ कमर्शियल बैंक, उसका कुछ प्रपोर्शन लाइक अगर 5% है तो 5% अमाउंट हम RBI के पास डिपॉजिट करेंगे, राइट, एज अ कैश रिजर्व रेशियो. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है कि जितने हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट करें हैं उसका SLR रेशियो की इक्वलेंट अमाउंट हम हमेशा अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखेंगे. कौन? बैंक वो अमाउंट जो SLR प्लस कैश रिजर्व रेशियो है उसके इक्वलेंट जो अमाउंट है कभी भी कस्टमर को लेंड नहीं करेगा, वो हमेशा रिजर्व्स की रेशियो को मेंटेन करके रखेगा. इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. अगर कोई भी बैंक ये रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करता है देन उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लिए जाते हैं. जनरली जो कैश रिजर्व रेशियो है इसकी रेशियो 3 to 5% में वेरी करती है एंड SLR की जो रेशियो होती है वो 20 to 25% में वेरी करती है. बट डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव ये जो रेशियो है इसको कम भी किया जा सकता है और इसको लिमिट से इंक्रीज भी करा जा सकता है.
कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये इतनी ही होएगी रेशो. इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट of the economy and on the discretion of RBI authorities. Next tool is open market operation. Sometimes central bank क्या करता है, गवर्नमेंट की हमने ये ऑलरेडी पढ़ा ना कि सेंट्रल बैंक इज गवर्नमेंट बैंक. गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है इट इज़ कंडक्टेड बाय सेंट्रल बैंक. जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको बाइंग एंड सेलिंग का काम भी कौन करते हैं, सेंट्रल बैंक करता है, मतलब रिजर्व बैंक करता है. अगर सेंट्रल बैंक मार्केट में वो सिक्योरिटीज को सेल करे तो क्या होगा, सेंट्रल बैंक के पास मनी की सप्लाई होगी ना, मतलब पैसा आएगा सेंट्रल बैंक के पास अगर सिक्योरिटीज सेल होंगी. तो इट मीन्स बैंक्स के पास पैसा कम हो जाएगा पब्लिक को लेंड करने के लिए. ऑन द अदर हैंड अगर सेंट्रल बैंक उन सिक्योरिटीज को मार्केट से बाय करना शुरू कर दे जिसको ऑलरेडी इसमें सेल करा है तो क्या होगा, पैसा वापस बैंक्स के पास चला जाएगा, सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक के पास आएगी. अब कमर्शियल बैंक वो पैसे को क्या करेगा, लेंड करने के लिए यूज करेगा. तो सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में कुछ ऑपरेशंस करता है, मतलब ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी करता है ताकि मॉनेटरी सप्लाई को मैनिपुलेट किया जा सके. So, the central bank can either purchase or sell securities issued by the government to affect the money supply. For example, central bank can purchase government bonds. As a result, banks will obtain more money to increase the lending and money supply in the economy. Next tool is, there are certain latest techniques which are very popularly used by Reserve Bank these days, that is repo rate and reverse repo rate. आई थिंक आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी बार बार बात चलती है, अभी लेटेस्ट भी आ रहा था कि रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, बहुत माइनर चेंजेस कर रहे हैं. देन व्हाट इज रेपो रेट एंड व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट इज व्हाट, इट इज रीपरचेज एग्रीमेंट. ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें सेंट्रल बैंक एडवांस शॉर्ट टर्म लोन थ्रू कमर्शियल बैंक, मतलब उनको लोन देता है. एंड जब वो लोन की वापसी करता है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट द शॉर्ट टर्म डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक, तो उसके बदले में उनको कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट. ठीक है, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लोन लेता है उसे हम रीपरचेज एग्रीमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को देता है दैट इज रेपो रेट. रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट क्या है, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और वी में से कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से के पास अपने डिपॉजिट जमा करते हैं, तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक उनको प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट. नेक्स्ट आर द qualitative credit control instrument. Qualitative credit control instruments are the selective credit control tools. इसमें क्या होता है कि कुछ सेलेक्टिव बेसिस पे क्रेडिट प्रोवाइड करा जाता है, जिसमें फर्स्ट हम टूल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ मार्जिन रिक्वायरमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट रेट क्या है कि सपोज आपको लोन चाहिए एंड यू गो टू बैंक, आपने 1,00,000 रुपए की सिक्योरिटी बैंक को दी, तो उसके बदले में बैंक आपको लोन दे रहा है. पर क्या आपको 1,00,000 रुपीज़ का ही लोन बैंक प्रोवाइड कर देगा? देन आंसर इज नो. बैंक क्या करेगा, मार्जिन देखेगा. अगर सपोज 10% की मार्जिन रेट चल रही है एट वन टाइम, तो बैंक आपको लोन कितना देगा, 90,000 रुपीज़ का. इट मीन्स आपको 1,00,000 रुपीज़ की सिक्योरिटी प्रोवाइड करके सिर्फ 90,000 का लोन मिल रहा है. अगर बैंक चाहता है कि क्रेडिट कंट्रोल इंक्रीज हो तो बैंक क्या करेगा, what the bank will do, they will increase the reserve bank will increase the margin requirement rate, decrease the margin requirement rate. Suppose अगर margin requirement rate 5% हो जाती है, then what will happen, bank will be able to give the loan to the customer 95,000 rupees. अगर रिजर्व बैंक ये डिसाइड कर ले कि मुझे क्रेडिट कंट्रोल करना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, देन दे विल इंक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट. मतलब अगर किसी को 85,000 का लोन लेना ना, तो उसको 1,00,000 की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी. सो मार्जिन रिक्वायरमेंट रेट क्या है, इट इज़ अ रेट विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू द बैंक एंड लोन सैंक्शनड बाय द बैंक, राइट.
सो ये भी एक क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट है. नेक्स्ट इज़ राशनिंग ऑफ क्रेडिट. राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जिसमें देखो जब बैंक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो वो डिपॉजिट में से सारा का सारा जो लोन है वो एक कस्टमर को नहीं प्रोवाइड कर सकते या एक सेक्टर को नहीं प्रोवाइड कर सकते. उनको एक बैलेंस मेंटेन करना होता है कि जो भी उन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं उसी में से लोन प्रोवाइड करेंगे ना. तो उसका कुछ परसेंट उन्होंने एग्रीकल्चर को देना है लोन के फॉर्म में, कुछ परसेंट इंडस्ट्री को देना है, कुछ परसेंट डोमेस्टिक सेक्टर को देना है, कुछ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को देना है, कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स देने हैं, कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स देने हैं, कुछ बिल्स डिस्काउंट करने हैं. तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेगा बैंक, कैसे क्रेडिट प्रोवाइड करेगा. तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट एक टूल यूज़ किया जाता है बाय द रिजर्व बैंक, जिसमें रिजर्व बैंक एक पॉलिसी फ्रेम करते हैं कि एवरी कमर्शियल बैंक विल सैंक्शन लोन अकॉर्डिंग टू द राशनिंग लिमिट इशूड बाय द रिजर्व बैंक. तो जो रिजर्व बैंक गाइडलाइंस इशू करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, like 10% loan will be issued to agriculture sector, 20% will be issued to the small and medium scale industries, 15% will be issued to the big industries. तो जो भी उन्होंने गाइडलाइंस फ्रेम करी है रिजर्व बैंक ने, कमर्शियल बैंक को वो फॉलो करनी पड़ेंगी. दैट इज कॉल्ड राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राइट. नेक्स्ट टूल इज डायरेक्ट एक्शन. ये अगर टूल को हम ऐसे बोलें कि ये एक नेगेटिव टूल है. नेगेटिव टूल इन द सेंस कि एवरी टाइम रिजर्व बैंक इशू गाइडलाइंस फॉर द कमर्शियल बैंक टू बी फॉलोड फॉर मेंटेनिंग क्रेडिट कंट्रोल. Sometime if commercial bank do not follow those guidelines, or we may say disobey the guidelines issued by Reserve Bank, then a disciplinary action is taken against the commercial bank. तो वो कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट पेनल्टी भी चार्ज करी जाएगी. पेनल्टी कैसे लगेगी कि आप 10% आपकी जो लिक्विडिटी है आपको और मेंटेन करनी पड़ेगी. अगर एक ऑर्डिनरी बैंक के लिए SLR रेट 20% है, देन आपके लिए 30% हो गया, मतलब बैंक को लॉस होएगा ना. 10% जो फंड्स हैं उनके ब्लॉक हो गए, वो किसी को लोन की फॉर्म में नहीं दे सकते, तो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट आना था वो भी नहीं आएगा. तो बैंक विल हैव टू फेस फाइनेंशियल लॉसेस. तो ये एक नेगेटिव टूल है, बैंक के ऊपर ये मेंटेन किया जाता है बाय द रिजर्व बैंक. नेक्स्ट इज द मॉरल सुएशन. मॉरल सुएशन को मॉरल परसुएशन भी बोल सकते हैं, जिसमें रिजर्व बैंक टाइम टू टाइम प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट्स करता है क्रेडिट कंट्रोल के लिए. लाइक हाउसिंग सेक्टर के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोन इशू करने हैं तो बैंक्स विल प्रमोट देयर हाउसिंग लोन स्कीम्स. न्यू स्कीम्स विल बी फ्रेम, जिसमें कस्टमर को प्रमोट करा जाएगा, मोटिवेट करा जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये लोन लो. कार की सपोज गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर का है उसको बूस्टअप करा जाए,